Hear ye, hear ye. Alexander Wolcott, the town crier. This is Wolcott speaking. The town crier coming with good news to the microphone. This broadcast is a piece of personal testimony. I have just undergone the memorable experience of witnessing the best moving picture I have ever seen. I can testify that no moving picture ever stirred me as deeply as this one. It is called Goodbye, Mr. Chips. Never be afraid, Chips, that you can't do anything you've made up your mind to. As long as you believe in yourself, you can go as far as you dream. Certainly you'll be headmaster, if you want to. This is the screenplay that has just been made in England from a story written 6 years ago this fall by an obscure young Englishman. At that time, he was comparatively unknown. A writer named James Hilton. Now, translated into a screenplay by the same Englishman to whom we owe the unforgettable tragedy called Journey's End. Directed by an American, Sam Wood, who crossed the Atlantic for the purpose, and with the schoolmaster himself superbly embodied by the magnificent young actor named Robert Donat. Hilton's gentle masterpiece has at last found its way to the screen. I approached its preview with deep and legitimate apprehension. I realize, and none better, what havoc some movies can work with books that I have known and loved. I am the more obligated, therefore, to tell you that this time a beautiful and perhaps immortal story has been translated from one medium to another with tenderness and imagination and genius. In a year in which the great nations of the world seem to be choosing partners for a dance of death, this cavalcade of English youth becomes suddenly an almost unbearable reminder of something which in a mad and greedy world may be allowed to perish from the earth. But I am here only to testify that in my own experience, the most moving of all moving pictures is the one called Goodbye, Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips. Goodbye. जी बेटा, तो आज हम मिस्टर चिप्स स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चिप्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी और बता चुका हूँ कि ये किस तरह का नावल है, इसमें किस तरह के इवेंट्स हैं, कैरेक्टर्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसके नेम भी मैंने आपको बताए। तो अभी उसके टेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। When you are getting on in years, but not ill, of course, you get very sleepy at times, and the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. जेम्स हिल्टन जब नॉवल को स्टार्ट करता है तो ये कहता है कि when you get on in years means when your age is increasing, when you are growing old. Okay, so when you are getting old in years, जब बंदा बूढ़ा हो रहा होता है, तो जब बूढ़ा हो रहा होता है
एंड देन ही राइट्स बट नॉट इल ऑफ कोर्स। बूढ़ा हो रहा होता है, बीमार नहीं होता, क्योंकि बीमार बंदे की जो फीलिंग्स हैं वो और होती हैं, और जो बूढ़ा बंदा है वो उसकी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कुछ और होती हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब आप उम्र में बढ़ रहे होते हैं, जब आप उम्र रसीदा हो रहे होते हैं, तो तब क्या होता है, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। आप जो है वो अक्सर औकात क्या होता है, आप पे गुनूदगी छाई रहती है, एक एक नींद का गलबा आपके ऊपर होता है, सुस्ती सी आपके ऊपर छाई रहती है। तो वो जो ड्राउजीनेस है, या आप अपने आप को इनएक्टिव, या आप कह सकते हो स्लगिश फील करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपके अंदर वो यंग एज वाली एनर्जी वो आपके अंदर नहीं होती। So that is why the writer says that when you are getting on in years, you get very sleepy at times. Okay, वो energy वो नहीं। And the hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. और वक्त कैसे गुजरता है? वक्त जो है वो किस तरह से गुजरता है, यहाँ पे राइटर ने सिमिली को यूज किया, लाइक का वर्ड यूज करके उसने सिमिली को यूज किया। एंड द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल। ओके, वक्त ऐसे गुजरता है जैसे कि जो सुस्त किस्म का, सुस्त रफ्तार जो क्या है जानवर जो है वो गुजर रहा हो, किस जगह से गुजर रहा हो, किसी भी लैंडस्केप से, किसी भी कुदरती मंजर से, किसी भी सीन से, किसी भी व्यू से। ओके, तो वो जब गुजर रहा हो, तो जिस तरह से वो कैटल जो है, जो मवेशी है, ओके, वो लेजी कैटल जो है वो जिस तरह से आमतौर पे लैंडस्केप में से गुजरते हैं, जैसे कि अगर मवेशी पूरा दिन घूम फिर के चर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो जब वापसी पे उनका मालिक उनको अपने घर की तरफ लेके जाता है, तो वो बड़े स्लोली मूव कर रहे होते हैं। दे आर नॉट दैट मच एक्टिव, एंड स्पेशली बफेलोज, ओके, दे आर नॉट दैट मच एक्टिव। तो हियर ही इज जस्ट सेइंग कि जो इंसान जो उम्र रसीदा हो जाता है, जो उम्र में जिसकी बढ़ जाती है, वो भी इस दुनिया के लैंडस्केप से आहिस्ता आहिस्ता अब उसमें वो एनर्जी, वो एक्टिवनेस नहीं होती। तो वो इस दुनिया के लैंडस्केप से ऐसे ही गुजरता है जैसे कि मवेशी जो है वो उस लैंडस्केप से गुजर रहे होते हैं, किसी सब्ज़ार से गुजर रहे होते हैं। और साथ ही वो उसको रिलेट करता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। इट वाज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड। मिस्टर चिप्स के साथ भी ऐसा ही था। वो क्या कहता है कि मिस्टर चिप्स भी ऐसा ही महसूस करता था, मिस्टर चिप्स के साथ भी ऐसा था। ओके, और मिस्टर चिप्स भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। तो इट वाज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड। तो स्कूल में जो है वो जिस तरह से स्कूल में जो ऑटम है, ऑटम टर्म जो है वो बढ़ रहा था। और जिस तरह से हमारे पास सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसमें स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, और हमारे पास वो फॉल, ऑटम हमारे पास होता है। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। So it was like that for chips as the autumn term progressed. तो ऑटम टर्म क्योंकि सर्दी का वक्त जो है वो होता है, और सर्दी के वक्त ज़्यादा वो सुस्ती और उसमें तारी होती है। सो अल्टीमेटली ही इज टॉकिंग अबाउट द ऑटम टर्म प्रोग्रेस एंड द डेज शॉर्टेंड। और दिन क्या हो जाते हैं, दिन जो है वो मुख्तसर हो जाते हैं, दिन जो है वो कम हो जाते हैं। एंड द डेज शॉर्टेंड till it was actually dark enough to light the gas before call over. Okay, और यहाँ पे call over की जो वो बात कर रहा है, वो कॉल द रोल की बात कर रहा है, अटेंडेंस की वो बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स थे वो बोर्डिंग स्कूल था, जैसे कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हॉस्टल और स्कूल, उस जगह पे बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रहते थे। तो अल्टीमेटली मिस्टर चिप्स जो है वो अब जो लाइफ वो गुजार रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि वो 75 ईयर्स का है ऑलमोस्ट उस वक्त। तो जो लाइफ वो गुजार रहा है वो रिटायरमेंट की लाइफ है, लेकिन उसने अपना जो टाइम टेबल है वो स्कूल के साथ एडजस्ट किया हुआ है कि स्कूल के हिसाब से वो क्या है चलता है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 42 ईयर्स उसने स्कूल के हिसाब से गुजारे हैं, वो स्कूल में ही रहता था। तो अब जब रिटायर्ड हो गया है, तो अब नहीं चाहता कि वो स्कूल के स्केड्यूल को बदले, ज़िंदगी में एक नया जो है वो
रुख ले या कुछ भी, अब उसकी एज भी इस तरह की नहीं है, तो उसने अपनी ज़िंदगी को स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो वो कहता है कि दिन जब कम हो जाते थे और इतना अंधेरा हो जाता था जल्द ही कि आपको जो है वो गैस लाइट जो है वो जलानी पड़ती थी अटेंडेंस से पहले। For chips like some old sea captain still measure time by the signals of the past। अब उसने उसकी रीजन भी दे दी कि मिस्टर चिप्स को कॉल ओवर के साथ क्या लगे, वो तो स्टूडेंट तो नहीं है, ही इज नॉट स्टूडेंट एक्चुअली, तो ही इज नॉट लिविंग इन स्कूल, सो व्हाई शुड ही वेट फॉर कॉल ओवर समथिंग लाइक दैट। हियर ही सेज फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, जैसे कि पुराने दौर के अगर जो लोग हैं वो अभी भी अभी तो बहुत कम रह गए हैं, तो पुराने दौर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, वो किसके हिसाब से गुजारते हैं, वो एक ट्रेडिशन के हिसाब से गुजारते हैं, रवायत के हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल दौर में आने से पहले की जो ज़िंदगी है वो गुजारी होती है। तो मिस्टर चिप्स भी इसी तरह से था, एक जिस तरह से उसने ओल्ड सी कैप्टन के साथ उसको क्या किया है, मिलाया है। तो अब ओल्ड सी कैप्टन समंदर में जब वो चल रही हूँ, तो वो जो मॉडर्न एज की जो थी टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से शायद अपने आप को जो है वो नहीं चलाते। तो जिस तरह से पुराने दौर के जो लोग हैं वो सूरज को देख के अभी ये वक्त हुआ होगा, अभी ये वक्त हो के उनके शाम होगी है, सुबह होगी है, ओके, और जो है वो दोपहर हो गई है, तो उस हिसाब से वो टाइम का अंदाज़ा जो है वो लगा लेते हैं अगर वो घड़ी ना भी देखे। तो मिस्टर चिप्स को भी बारे में भी ये कहा जाता है कि वो मेजर्ड टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट। तो वो भी माजी की जो अलामात थी या माजी के जो इशारे थे उसके हिसाब से वो क्या करता था, वो अपनी ज़िंदगी गुजारता था। ओके, माजी के हिसाब से, वक्त का जो हिसाब है वो माजी के सिग्नल्स की मदद से जो है वो मिस्टर चिप्स रखता था कि अब जैसे कि वो घड़ी ना भी देखे तो उसे पता चल जाता था कि अब जो है वो अगर कॉल ओवर हुई है तो ये खज़ां का मौसम है, तो ये सर्दी है, तो अब ये टाइम हो गया होगा। तो ही डिडंट नीड टू वॉच क्लॉक, ओके, तो उसके बगैर ही वो अंदाज़ा लगा सकता था। एंड वेल ही माइट, फॉर ही लिव्ड एट मिस्टर विकेट जस्ट क्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। और वो ये कर भी सकता था क्योंकि वो बिल्कुल स्कूल के दूसरी तरफ मिसेस विकेट के जो है वो घर में, मिसेस विकेट्स, ओके, मिसेस विकेट्स हाउस, ओके, इट शोज मिसेस विकेट्स हाउस। तो ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स हाउस जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया कि मिस्टर चिप्स जब रिटायर्ड हुआ तो रिटायरमेंट के बाद उसने स्कूल के बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हो कि साथ ही ऑपोजिट साइड पे उसने क्या ले लिया, उसने अपना एक रेंट पे जो है वो रूम ले लिया और वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया। अब स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, एक तो जब कॉल ओवर के लिए बेल या किसी भी सिलसिले के लिए जब भी बेल बजती थी तो मिस्टर चिप्स वाज एबल टू हियर दैट। ऑन द अदर हैंड वो जब भी मौसम अच्छा होता था और किसी तरह का कोई भी, क्योंकि मिस्टर चिप्स को सर्दी से थोड़ा प्रॉब्लम होता था सांस का, तो इस वजह से वो जब मौसम थोड़ा खुशगवार होता था, धूप निकलती थी या गर्मियों में, तो उसका मौसम फेवरेट समर सीज़न था। हमारे यहाँ फेवरेट समर सीज़न नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ गर्मी शदीद होती है। जैसे कि मई का जो मंथ है वो इंग्लैंड में उस मंथ को एक खूबसूरत मंथ कंसिडर किया जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ फेब जो है वो फेब या मार्च को जैसे मंथ कंसिडर किया जाता है। शेक्सपियर ने भी अपने अपने सोनेट्स के अंदर, अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो यूज़ किया, शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। तो समर उनके लिए समथिंग दैट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। तो मिस्टर चिप्स को भी समर बहुत अच्छा लगता था। उसकी रीज़न ये थी कि उसको सांस की प्रॉब्लम समर में नहीं होती थी। तो मिस्टर विकेट के घर में रहता था, स्कूल के बिल्कुल पास। He had been there more than a decade ever since he finally gave up his mastership. Okay, अब यहाँ पे वो आ रहा है, अब वो उसको जो इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ उसके साथ या दी हुई है उसके साथ चीज़ें खुद ब खुद रिलेट हो रही हैं और आपको समझ आ जाएगा। He had been there more than a decade। मतलब अब उसे 10 साल तकरीबन हो गए थे यहाँ पे रहते हुए। जैसे कि मिस्टर चिप्स 65 की एज में रिटायर्ड हुआ था और अब उसको एक डेकेड मीन 75 का वो है और वो वहाँ पर रह रहा है। Ever since he finally gave up his mastership। तो जब उसने अपनी मास्टरशिप छोड़ी तो उस वक्त से लेकर अब तक वो क्या कर रहा है, वो स्कूल में
सॉरी मिस विकेट के घर में वो क़याम पज़ीर है, वो वहाँ पर रह रहा है और 10 सालों से जो है वो 10 साल हो चुके हैं जब स्कूल में पढ़ाना उसने छोड़ा था। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड far more than Greenwich time that both he and his landlady kept. अब ये ब्रुकफील्ड जो उसके लिए था, ओके, उस अ, उसके लिए वो जो ग्रीनविच टाइम, ठीक है, जो इंग्लैंड का जो वक्त है, ठीक है, इंग्लैंड का जो वक्त है, ओके, जैसे स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, ओके, तो ब्रुकफील्ड उसके लिए फार मोर देन ग्रीनविच टाइम, ओके, वो इंग्लैंड के वक्त के बजाय वो ब्रुकफील्ड के टाइम टेबल के मुताबिक, ब्रुकफील्ड के वक्त के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को गुजारता था। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी जो लैंड लेडी थी, मीन्स की मिस विकेट, जिसके घर में वो रहता था। तो यहाँ पे राइटर क्या कहता है कि इट वाज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम विद बोथ ही एंड हिज लेडी कैट। तो वो इंग्लिस्तान के वक्त या इंग्लैंड के वक्त के जो है वो के बजाय वो ये वक्त इसको प्रेफर करते थे, इसको वो इम्पोर्टेंस देते थे ब्रुकफील्ड के टाइम को। और ब्रुकफील्ड में जब भी बेल बजती थी, अब पहली क्लास होगी ये मीन्स कि ये टाइम हो गया, दूसरी क्लास होगी तो ये टाइम हो गया, अब कॉल हो रहा तो ये टाइम है, अब सोने के लिए लाइट्स बंद होने के लिए जो है वो कॉल हो रही है, अब ये टाइम हो गया। तो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ब्रुकफील्ड, तो उसे वक्त देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, स्कूल के हिसाब से ही वो अपने आप को मैनेज कर लेता था। Miss Wicket Chips would sing out in the jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. तो मिस्टर चिप्स, क्योंकि उस एज में आपकी जो आवाज़ है उसमें वो दबदबा थोड़ा ख़त्म हो जाता है, तो मिस्टर चिप्स थोड़ी सी जर्की उसकी क्या होती थी, आवाज़ होती थी। मीन्स कि जो जर्की होती है, जो शेकिंग या कन्वल्सिव होती है, ओके, जर्की, शेकिंग, तो उसकी थोड़ी सी शेकी सी आवाज़ थी जो ऊपर नीचे होती थी। मिस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट, ओके, वो ऐसे बोलता था जैसे कि कोई सॉन्ग में उसको जो है वो क्या कर रहा हो, गा रहा हो। तो मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी अपनी जो आवाज़ है वो एक लड़खड़ाती हुई या उस आवाज़ में मिस्टर चिप्स बोलता था, हाई पिच्ड वॉइस, ओके, जिसकी जो आवाज़ थोड़ी सी बुलंद होती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई किसी गीत की शक्ल में उसको कह रहा हो। And it's still a good deal of sprightliness in it. Sprightliness, that is the word most of the time. It is there in synonyms. So sprightliness means liveliness, or you can say it has some sort of briskness. Okay, तो liveliness के अंदर जो है वो पाई जाती थी उसकी आवाज़, गो के लड़खड़ाती थी लेकिन उसके आवाज़ के अंदर काफ़ी एक जिंदा दिल वाली जो बात है वो पाई जाती थी। You might bring me a cup of tea before prep, will you? So he used to say to Mrs. Wicket, कि Mrs. Wicket स्कूल में जो इनके प्रेप मीन्स जो आमतौर पे जो घर का काम का जो वक्त होता है ना, जैसे कि हॉस्टल में अगर कोई रह रहा होता है तो जो स्कूल से आपको काम मिलता है वो आपका होमवर्क ही एक तरह से होता है, जो कॉलेज से आपको काम मिलता है वो भी आपका होमवर्क ही होता है। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ प्रेप। तो वो कहता है कि वो जो बच्चों की जो घर के काम की जो तैयारी है या घर के काम का जो वक्त है, उससे पहले मुझे एक चाय का कप ला के दोगी प्लीज। मिस्टर विकेट को अक्सर ये कहता था। अब ये मिस्टर चिप्स की आगे उस 75 ईयर्स में जो मिस्टर चिप्स की लाइफ है, उसके बारे में हमें एक हल्का सा व्यू यहाँ पर मिलता है, वो इस पैराग्राफ के अंदर, कि मिस्टर चिप्स कहाँ पर रह रहा है, मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है और स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से गुजार रहा है। उसको तशबीह के साथ वो यूज़ करता है, ओल्ड सी कैप्टन, और उसके साथ जो है वो लेजी कैटल और ये यूज़ करता है। और ये भी हमें पता चलता है कि मिस्टर विकेट के घर में रह रहा है, दैट इज़ जस्ट अक्रॉस स्कूल। और अक्सर वो अपनी लाइफ को इंग्लैंड के वक्त के साथ नहीं बल्कि वो अपनी लाइफ को किसके वक्त के हिसाब से गुजारता है, वो ब्रुकफील्ड के वक्त के हिसाब से गुजारता है। And then the writer repeats the same sentence with which he has started the novel. That is, he says, when you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding, dinner, call over, prep and lights out. तो मिस्टर चिप्स की एक खूबसूरत लाइफ थी जो वो गुजार रहा था, no worries at all and no problems, and the life was quite smooth and serene and peaceful.
So what he was saying, when you are getting on in years, it is nice to sit by the fire. जब आप उम्र में बढ़ रहे होते हैं ना, तो वाह, अब थके होते हैं तो आग के साथ बैठना, आग के पास बैठना, क्या बात है उसकी। आग के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है आपको। तो उम्र में जब आप ज़्यादा हो रही होती है आपकी उम्र, तो आग के पास बैठना और फिर उसके साथ उसमें जो और खूबसूरती, एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय पीना, ओके, चाय का एक कप पीना, एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, और स्कूल की बेल की आवाज़ सुनते रहना। कभी वो डिनर के लिए बज रही है, कभी वो कॉल ओवर के लिए बज रही है, कभी वो प्रेप के लिए। अब स्कूल काम करने का वक्त हो गया, अब अटेंडेंस का वक्त हो गया, अब बत्तियां बुझाने का वक्त हो गया, लाइट्स ऑफ कर दें, अब सोने का वक्त हो गया। तो इस तरह की जब बेल्स बजती थी, आग के सामने बैठ के सर्दी में चाय का एक कप पीते हुए मिस्टर चिप्स ये सब कुछ सुनता था। ओके, और वो कहता है कि इट इज नाइस टू सिट बाय द फायर एंड ड्रिंक अ cup of tea and listen to the school bell sounding, dinner call over prep and lights out. Chips always wound up the clock after the last bell. अब ये मिस्टर चिप्स की रूटीन है ना, अक्सर इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि what was the routine of Mr. Chips, okay, at Mrs. Wicket's house when he was living a retired life. तो अब मिस्टर चिप्स की जो लाइफ है, ओके, वो किस तरह से वहां पर गुजरती है, वो करता क्या है, तो उसकी थोड़ी सी रूटीन के बारे में हमें बताया जाता है। Chips always wound up the clock after that last bell and then he put wire guard in front of the fire. जब आखिरी बेल बजती थी, कौन सी बेल, लाइट्स आउट की, तो मिस्टर चिप्स क्या करता था, अपनी घड़ी को चाबी देता था। तो वाइंड वोंड वोंड, ओके, तो वो अपनी घड़ी को चाबी देता था, और उसके बाद देन ही पुट अ वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर। और फिर क्योंकि सर्दियाँ, जो ऑटम का मौसम है उसमें सर्दियाँ होती थी, और एक आग जो है वो रूम में अंगीठी टाइप जो है वो आग वहाँ पर क्या है जलाई गई होती थी। तो अंगीठी जो होती थी उसके सामने मिस्टर चिप्स जो आग वाली अंगीठी है उसके सामने लोहे की जो जाली लगाता था, और क्या करता था, एंड टर्न आउट द गैस। ओके, सो अब मिस्टर चिप्स जो है वो लोहे की जाली लगाने के बाद वो क्या करता था, वो गैस को ऑफ कर देता था, एंड कैरिड गैस को खोल देता था। ओके, तो एंड कैरिड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड। और मिस्टर चिप्स को डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने का बड़ा शौक था, तो वो क्या करता था, डिटेक्टिव नॉवल उठाता था, एक जासूसी नॉवल उठाता था, और वो बिस्तर पर लेट जाता था उसको लेके। तो अब ये मिस्टर चिप्स का एक, आप कह सकते हो, फेवरेट मशगला था। यही काम, वो हर रात को यही काम दोहराता था, ये उसकी रिटायरमेंट की लाइफ की रूटीन थी। स्कूल की लाइट्स ऑफ होने की जब भी बेल बजती थी तो मिस्टर चिप्स उसके बाद ये काम करता था। ओके, और अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपने इसी तरह का आंसर अपने देना है, और अगर इसमें से आप कुछ वर्ड को पिक कर लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाती है, जैसे कि आप टेक्स्ट के कुछ वर्ड वहां पर ऐड कर देते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ। Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully. और बहुत मुश्किल ही वो उसका एक आध पेज पढ़ता था तो नींद उसके ऊपर हावी हो जाती थी। वो नॉवल तो उठाता था, जैसे कि आप भी अक्सर जो है वो पढ़ते हुए, अक्सर जब नींद ना आ रही हो तो बंदा पढ़ना शुरू करता है तो नींद आ जाती है। तो आपके साथ तो ऐसा ही होता होगा, मिस्टर चिप्स के साथ भी ऐसा ही होता था कि वो नॉवल का एक सफा पढ़ पाता था कि नींद तेजी से और सुकून से उसके ऊपर क्या होती थी, छा जाती थी, वारिद हो जाती थी उसके ऊपर। मोर लाइक अ मिस्टेक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन, और बल्कि वो ऐसे लगता था जैसे कि वो एक कोई एक, आप कह सकते हो, कोई सूफी, एक रूहानी जो बंदा है, वो अपने जो उसकी जो परसेप्शन है, उसका जो इदराक है, उसको उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि अपनी आंखें बंद करता है ना, तो मुझे जब ये नहीं लगता था कि वो सोने लगा, बल्कि ये लगता था कि ये कोई ऐसा रूहानी आदमी है, ऐसा मिस्टिक है कि जो कुछ जानने के लिए, किसी चीज की हकीकत तक पहुंचने के लिए, वो इस जो जाहिर की जो दुनिया है इससे किसी दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड। ओके,
तो ये नहीं लगता था कि वो किसी नींद की किसी दूसरी दुनिया में दाखिल होने लगा है, बल्कि ये लगता था कि मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी परसेप्शन को, अपनी इदराक को आंखें बंद करके बढ़ाने लगा है, हकीकत की तहों को खोलने लगा है। पर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, क्योंकि उसके दिन और रात दोनों किस्से ख्वाबों से क्या है भरे होते थे। मीन्स के दिन और रात में वो ख्वाबों में ही खोया रहता था, ठीक है, क्योंकि वो जागती आंखों से भी ख्वाब देखता था। ख्वाब देखने से क्या मुराद है? when you are dreaming, okay, there are certain things which are happening। और अगर आप अपनी मेमोरीज में खोए हुए हैं, आप अपने माजी में अक्सर जो है वो रहते हैं, और वो वाकयात आपकी खुली आंखों के सामने भी चलते रहते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसा कि आप किस में खोए हुए हैं, आप ड्रीमिंग में खोए हुए हैं, ओके, चाहे वो दिन हो या रात हो। तो मिस्टर चिप्स की भी दिन और रात इसी तरह से क्या थे, ड्रीमी थे। तो यूसेजेस जो हम अब पढ़ने लगे हैं टेंसेज और पैसिव के बाद, वो यूसेजेस हैं, उसमें सबसे पहले हम आज देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। किसको हम देखेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप यूजुअली कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जी बेटा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो बता दिए मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी तरह का कोई भी ऑर्डर रिक्वेस्ट और यू कैन से एडवाइस, ये हम उसमें देते हैं। और आम तौर पे जब ये हम सेंटेंस, इसमें हम जो सब्जेक्ट है वो हम नहीं लिखते, इन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। और आमतौर पे जब भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो यूजुअली वो जो बंदा है वो आपके सामने होता है, ओके। जब आप इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिंपल जो सेंटेंसेस इंपेरेटिव के हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आम तौर पे वो बंदा आपके सामने होता है, इसलिए यू उसमें अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब ये नहीं है कि वो होता ही नहीं है, उसमें होता है, लेकिन अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम उसको लगाते नहीं हैं, ओके। जैसे कि हम किसी को ये कहते हैं लाइक ओपन द डोर, ओके, लाइक हम ये यूज करते हैं। और अगर हम इसी को जो है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज करें, so that would be open the door kindly, okay, or open the door please, please। And like you can also advise somebody, okay, you can say always speak truth, always speak truth, okay। ये उसमें आपके पास आ जाएगा। और इसका जो नेगेटिव बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं, जो वी यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं डू नॉट, ओके, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, ओके। तो उसके साथ भी आप लगा सकते हैं
जो दूसरा है आपके पास जिसको आपने स्टार्ट में जो है वो देखा, तो लाइक always speak the truth and do not tell a lie. Okay, so that is do not tell a lie. आप इसमें भी ये यूज कर सकते हैं। अब अगर यही सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो आपके पास अगर आ जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, मीन्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि ऐसे ऐसे सेंटेंस में कि जहाँ पे उससे पहले कोई ना कोई क्लॉज मौजूद हो और उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कहते हैं। तो उस तरह से जैसे कि हम ये कहें कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएम, ओके, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएम, कि वो क्या करे, ओके, कि वो घंटी बजा दे। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएम, तो उसके बाद हम टू लगा के इसी इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसे कि आई ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, उसमें टू अप लगा के आप उसको जो करते हैं दैट वगैरह उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर इसी को नेगेटिव वाले को आप उसमें यूज़ करेंगे तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू, अगर नेगेटिव वाला हो तो क्या हो जाएगा, नॉट टू, नॉट टू, टू लगा के और नॉट टू लगा के आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको नेगेटिव में लेके जा सकते हैं। अगर इससे पहले कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हो, मौजूद हो, तो नॉट टू लगा के या टू लगा के आप उसको बना सकते हैं। ओके, लाइक he advised his son not to sit in the bad company, he advised his son कि वो बुरी सोबत में ना बैठे। तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते he advised his son to sit, ओके, और do not sit, ओके। तो do not sit तो आप लिखने में तो लिख सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब बोलेंगे सर्टनली तो उसको आप ये तो नहीं कहेंगे कि he advised his son common word, comma start, do not sit in bad company, okay, so not to sit in the bad company, okay, so he advised his son not to sit in bad company। so actually जब ये इसमें पहले कोई क्लॉज आ जाए तो आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से क्या करना है, यूज करना है जी। तो इसमें बेटा सेंटेंसेस जो आपके पास आ जाएंगे वो ये हैं, आप उनको लिखें। सुबह सवेरे उठो और सैर के लिए बाहर चले जाओ, सुबह सवेरे उठो और सैर के लिए बाहर चले जाओ। गरीबों और यतीमों का ख्याल रखो, ओके, यतीमों के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑर्फन्स, यूज करेंगे ऑर्फन्स, ऑर्फन्स, यतीम। गरीबों और यतीमों का ख्याल रखो, ओके, तो उसके लिए हमने यतीमों के लिए जो वर्ड यूज किया वो ऑर्फन्स, ओके, और उसके लिए आप जो है वो पुअर का वर्ड जो यूज करेंगे। नकली चीज़ों से खबरदार रहो, ओके, नकली चीज़ें कौन सी होती हैं, जो इमिटेशन स्टफ होता है, इमिटेशन स्टफ। आपने इमिटेशन स्टफ के बारे में ऑयस्टर एंड द पर्ल, द ऑयस्टर एंड द पर्ल में आपने इमिटेशन स्टफ के बारे में बात की। बूढ़े वालिदैन से नरमी से बात करो, ओके, तो नरमी से बात करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्पीक जेंटली, स्पीक जेंटली, नरमी से बात करो। बूढ़े वालिदैन से नरमी, बूढ़े वालिदैन के साथ नरमी से बात करें। और सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करो, सुनी सुनाई बात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुनी सुनाई बात के लिए हम यूज़ करते हैं hearsay, hearsay, ओके, सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करो। बुजुर्गों की मौजूदगी में अपनी ज़ुबान बंद रखो, ओके, तो मौजूदगी के लिए हम यूज़ करेंगे presence, presence। उसे मकान खाली करने पर मजबूर ना करो, ओके, तो ये खाली करने का जो वर्ड है ये पहले भी काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है, वकेट, ओके, खाली करने के लिए। जानवरों पर जुल्म मत करो, ओके, तो क्रूअल, क्रूएलिटी, ओके, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मेहरबानी करके मेरी नींद में खलल ना डालिए, ओके, मेहरबानी करके मेरी नींद में खलल ना डालिए। सो खलल डालने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डिस्टर्ब का वर्ड आप यूज़ करेंगे, डिस्टर्ब, खलल के लिए। तो ये हो गया। बेटा एक और लिख लें, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ।
तो दिल दुखाने के लिए आई थिंक सो पहले भी ये एक्सप्रेशन गुजरा है हमारे पास। तो इंजर one's feelings, injure one's feelings, आपके पास ये आ जाएगा injure one's feelings. So that is what we have about imperative sentences. तो उम्मीद है कि कुछ आप खुद से भी प्रैक्टिस करके जो आपके पास बुक्स हैं उसमें भी जो सेंटेंसेस होंगे मेरे वाले सेंटेंसेस को अपने सेंटेंसेस को यूज करके आप इसकी बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी अब ईडियम्स को देख लें। आई डोंट रिमेम्बर कि ईडियम हमारे कहाँ तक हुए थे। आई थिंक 50 प्लस में हो गए थे। इफ एनीबॉडी कैन सेंड मी अ मैसेज सो दैट आई कुड सी कि कितने ईडियम्स हो गए थे, उस हिसाब से मेरे लिए आसानी हो जाएगी जरा उसको माइंड में लाना। जी बेटा, एनीबॉडी कैन टेल कि ईडियम्स कहाँ तक हुए थे? ओके तो आगे हम चलते हैं। मैं कुछ आपको लिखवाता हूँ एंड देन यू वुड टेल मी कि ये हुए हैं या नहीं। ओके देन यू कैन राइट by and by and large। by and large का मतलब होता है मजमूई तौर पर। तो by and large मजमूई तौर पर, by and large he is a gentleman। okay then we have by fits and by fits and by fits and start by fits and start by fits and starts। तो ये है बेकायदगी से, इरेगुलरली। ओके बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इरेगुलरली इसके लिए जो है वो यूज हो जाएगा लाइक ही कैन नॉट पास बिकॉज ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। एंड व्हेन वी हैव by leaps and bounds, by leaps and bounds। दिन दुगनी रात चुगनी आप अक्सर यूज करते हैं। ही इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ही इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट वी हैव call a spade a spade। call a spade a spade means खरी बात करना, साफ बात करना। You can make your own sentences अगर आपको मीनिंग आते हों। An honest man always calls a spade a spade। An honest man always calls a spade a spade। And then we have number 5, that is call in question। call in question that means शक करना। ओके किसी को किसी भी बात पे या उस पे। so I cannot call his honesty in question। I cannot call his honesty in question। so that is all for today। I hope you enjoyed the lecture। और इसमें से किसी भी जो स्टेप है उससे रिलेटेड अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो, you can put that question to me directly on my WhatsApp number। thank you very much।